Okay. So the reason why students find it difficult is because the name itself is very difficult. पता नहीं लगता परमुटेशन कब लगाना है, कॉम्बिनेशन कब लगाना है, और पता लग भी गया तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो समझ में नहीं आता. So before starting this topic, let us change the name of this topic itself. Okay. So permutation को हम बोलेंगे arrangement. Okay. Because permutation is nothing but an arrangement of different objects and the number of ways that they can be arranged. और combination को हम बोलेंगे selection. So permutation and combination नहीं पढ़ना, arrangement and selection पढ़ना है. Okay, so now let us see what both of these terms mean. Suppose we have n different types of object. Let's call them A1, A2, A3 till AN. Okay. So now in permutation, what we have to do is we have to arrange these n objects and we have to find in how many ways these can be arranged. Okay. So this is one of the arrangement. अब किसी दूसरे arrangement में we could bring A2 first, then A1 and the remaining remains the same. So permutation का मतलब होता है ऐसे कितने set of arrangements are possible which are different from each other. So permutation को you have to understand as number of arrangements. Okay. So first let me give the formula for permutation, then we will see why that is true. Okay, so permutation अगर total number of objects n है और इसमें से हमें r select करने हैं, so how many ways are there to select r objects and then arrange them into different ways. So for that we will use the formula for npr, and this is equal to n factorial divided by n minus r factorial. So let us understand what this means. So हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स थे स्टार्टिंग में, a1 से लेके a2 से लेके an तक, and all of them were different from each other. So none of the objects are similar. अब हमें इन n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट करके उनको अरेंज करना है. So let's say we have r blanks to be filled. This is blank number 1, this is blank number 2, this is blank number r. और ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास n. तो पहले तो इन n में से हमें r ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना होगा और फिर सेलेक्ट करने के बाद इन r ऑब्जेक्ट्स को इन ब्लैंक्स में कितने ऑर्डर्स से हम कितने नंबर ऑफ वेज से अरेंज कर सकते हैं, दैट विल गिव यू द परमुटेशन. ठीक. Okay, so first step is selection, and after selecting r objects, so selecting r objects is the first step, and then these r objects have to be arranged. So first step में हमारे पास number of ways होते हैं n factorial divided by r factorial times n minus r factorial, जिसको हम NCR भी कहते हैं. So जो फर्स्ट स्टेप है जिसमें हम n में से r सेलेक्ट कर लेते हैं बस, दैट इज द कॉम्बिनेशन पार्ट. अब हमने सिलेक्शन कर लिया, उसके बाद r ऑब्जेक्ट्स को कितने डिफरेंट वेज में अरेंज करना है, दैट इज द परमुटेशन पार्ट. So for every selection there are r factorial different ways into which that particular arrangement can be done. So the number of arrangements will be given by NCR multiplied by r factorial. NCR में हमने सेलेक्ट कर लिया r फैक्टोरियल इसलिए क्योंकि उन r ऑब्जेक्ट्स की नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बतानी है. This is equal to the permutation of NPR, and this is equal to n factorial divided by n minus r factorial. ऐसे याद कर सकते हो, पहले सेलेक्ट करेंगे फिर अरेंज करेंगे. सिलेक्शन वाला पार्ट इज कॉम्बिनेशन, अरेंजमेंट वाला पार्ट इज परमुटेशन. तो एक एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से देयर आर 1000 पीपल
सभी लोग अलग अलग हैं, कोई भी दो लोग सेम नहीं होते। अब इन 1000 लोगों को हमें घर बांटने हैं, बट हमारे पास सिर्फ 100 लोगों के लिए घर है। तो पहले हम इन 1000 में से कुछ क्विज या कुछ लकी ड्रॉ निकाल के 1000 में से 100 लोग सिलेक्ट करेंगे और 100 लोग फिल्टर करेंगे। ये वाला स्टेप हो गया सिलेक्शन, और इसे बोलते हैं सिलेक्शन या कॉम्बिनेशन। अब 1000 में से 100 पीपल सिलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज आर 1000 C100 और 1000 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 100 फैक्टोरियल टाइम्स 900 फैक्टोरियल। इतने नंबर ऑफ वेज हैं हमें कोई 100 सिलेक्ट करने के। तो अगर हम लकी ड्रॉ निकालते हैं तो इतने डिफरेंट पॉसिबल रिजल्ट्स पॉसिबल है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारे पास 100 लोगों के लिए घर है, तो किसको कौन सा घर मिलेगा, ऐसे कितने डिफरेंट ऑफ वेज हैं। तो लेट्स से ऐसे 100 घर है हमारे पास। अब किस बंदे को किस घर अलॉट, कौन सा घर अलॉट होगा, इसके कितने नंबर ऑफ वेज हैं। तो जितने ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं उतने पॉसिबल वेज मल्टीप्लाइड बाय 100 फैक्टोरियल। सो 1000 फैक्टोरियल बाय 100 फैक्टोरियल टाइम्स 900 फैक्टोरियल, तो नंबर ऑफ वेज थे सेलेक्ट करने के। अब 100 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज 100 स्लॉट्स को हम 100 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। इसका आंसर आएगा 1000 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 900 फैक्टोरियल which is NPR 1000 P 100. Okay. Okay. Now there are some properties. The first property is NPR is equal to NPN minus R. इसका प्रूफ तो बहुत आसान है, राइट? कैसे होगा इसका प्रूफ? ये सही भी है या गलत है? Okay, let us see what is NPR. NPR is n factorial divided by n minus r factorial. And npn minus r is n factorial divided by n minus r factorial, which is r factorial. तो क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है ना? तो ये फर्स्ट डाउट रहता है स्टूडेंट्स में कि लोगों ने ये प्रॉपर्टी देखा होता है तो जनरली इसको ट्रू मार्क करके आते हैं, बट दिस इज नॉट करेक्ट। ये सिर्फ कॉम्बिनेशन के लिए करेक्ट होती है प्रॉपर्टी। Okay. So this one is incorrect property, and the correct property is NCR is equal to NCN minus R. And इसका प्रूफ ऐसे होगा NCR is n factorial divided by R factorial times n minus R factorial, और दूसरे वाले में n और R रिप्लेस हो जाएंगे, तो फाइनली सेम आंसर आएगा। This is correct. Okay. The next property is NCR is equal to NPR divided by R factorial. इसका प्रूफ तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। The next property is NC0 is equal to NCN is equal to 1, and NP0 is equal to NPN. This is not correct. तो इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं, अगर सिलेक्शन वाला वर्ड है इसका मतलब हमें कॉम्बिनेशन यूज करना है, अगर अरेंजमेंट वाला वर्ड है इसका मतलब हमें परमुटेशन यूज करना है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। इसमें सबसे पहली चीज जो हम पढ़ते हैं दैट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अगर कोई एक चीज m डिफरेंट वेज से हो सकती है
और कोई दूसरी चीज़ n डिफरेंट वे से हो सकती है। तो अगर हम दोनों चीज़ को करवाना चाहें तो वो m टाइम्स n डिफरेंट वे से हो सकती है। So let's say this is event 1. Event 1 can happen in m different ways. And this is event 2. Event 2 can happen in n different ways. Then how many ways can event 1 and 2 together happen? m times n. अगर पहला इवेंट 2 तरीकों से हो सकता है, दूसरा इवेंट 3 तरीकों से हो सकता है, तो कितने तरीकों से दोनों इवेंट मिला के हो सकते हैं? 6 तरीकों से। ठीक है, दिस इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो इसको यूज करके हम प्रूव करते हैं। सपोज देर आर n different objects and we have to arrange them in different places. Okay? So we have n objects and we have n spaces to put these objects into. So how many different ways are possible to put these n objects into n spaces? इसके लिए हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज करेंगे। फर्स्ट वाले ब्लॉक में हमारे पास पुट करने के लिए n ऑप्शंस हैं। सेकंड वाले ब्लॉक में हमारे पास n-1 ऑप्शंस हैं। थर्ड वाले ब्लॉक में हमारे पास n-2 ऑप्शंस हैं एंड लास्ट वाले ऑप्शन में 2 और 1 ऑप्शन है। सो n ऑब्जेक्ट्स को n स्पेसेस में पुट करने के लिए हमारे पास n इंटू n-1 इंटू n-2 टिल 2 टाइम्स 1 ऑप्शन है, which is equal to n factorial. So to arrange n objects within n spaces, we have n factorial ways and we have proved this using fundamental principle of counting. अब सिमिलर चीज अगर हमारे पास m plus n ऑब्जेक्ट्स होते और n स्पेसेस में अरेंज करना है, तो पहले हम इन m plus n में से n ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे, which will be m plus n c n, और फिर इनको n ऑब्जेक्ट्स को n स्पेसेस में अरेंज करेंगे जो होगा n फैक्टोरियल। एंड दिस इज नथिंग बट द परमुटेशन ऑफ अरेंजिंग n ऑब्जेक्ट्स with arranging n objects in n spaces and then selecting n objects from the m plus n objects that we originally had. This is equal to m plus n pr. तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन। अब इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, करीब 50-60 प्रॉपर्टीज होते हैं। हम सब तो नहीं पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट वाले प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है और फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, हमारे पास m plus n डिफरेंट थिंग्स है। तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स दैट वी हैव, और इसे हमें ग्रुप्स में डिवाइड करना है। पहला ग्रुप होना चाहिए m आइटम्स का और m थिंग्स का, दूसरा ग्रुप होना चाहिए n थिंग्स का। सो m plus n को हमें m और n के ग्रुप्स में डिवाइड करना है। तो इसके कितने पॉसिबल वेज होंगे? सो लेट अस सी इसको हम कैसे अप्रोच करेंगे। Okay, so we have m plus n different things and these are to be divided into two groups containing m and n things respectively. Okay, so इसको हम ऐसे अप्रोच करते हैं, जो इनिशियली हमारे पास नंबर ऑफ थिंग्स थी, पहले उनके नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकाल लेंगे। सो लेट्स से हमारे पास m plus n थिंग्स थी, उनको हम सेम मानते हुए टोटल m plus n बॉक्स फिल करने के नंबर ऑफ वेज टू अरेंज निकालेंगे। सो 1 2 3 4 m और लास्ट ऑब्जेक्ट होगा m plus n। पहले हम इन्हें सेपरेट ट्रीट नहीं करेंगे, बस रैंडमली नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालेंगे। सो इसको अरेंज करने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ वेज हो गए m plus n फैक्टोरियल। अब हम m और बाकी n को सेपरेट करेंगे। अब जो ओरिजिनल m plus n फैक्टोरियल था, उसमें जो पहले m थे उनका हम कैसे भी अरेंजमेंट कर लें वो डबल काउंट हो गए।
हमें m प्लस n चीज़ों का m और n का अलग-अलग से ग्रुप बनाना है। इसको हम m प्लस n की जगह किसी नंबर से करते हैं तब थोड़ा आसान होगा समझना। तो मान लो हमारे पास 100 चीज़ें थी, उसके हमें 30 और 70 के ग्रुपिंग्स करने हैं। तो पहले हम 100 चीज़ों को 100 चीज़ों को डिफरेंट वेज ऑफ अरेंज करने के नंबर निकालेंगे। लेट्स से वी हैव 100 बॉक्सेस लाइक दिस। अभी हम 30 और 70 को कंसीडर भी नहीं करेंगे। 1 to 30 और 31 to 100 ये वाले 30 बॉक्सेस हैं और ये वाले 70 बॉक्सेस हैं। अभी हम ये वाला सेग्रीगेशन भूल जाएंगे, बस इनको नंबर ऑफ वेज इनको रैंडमली अरेंज कर देंगे। तो ऐसा करने के देयर आर 100 फैक्टोरियल वेज जो अभी हमने देखा। अब हमने रैंडमली अरेंज कर दिया। अब जो पहले 30 हैं उनको अलग ले लो और जो लास्ट के 70 हैं उनको अलग ले लो। अब जो पहले 30 हैं उनको हम आपस में जैसे मर्जी भी अरेंज करें, उससे हमारा ओरिजिनल ग्रुपिंग पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब जो पहले 30 फैक्टोरियल ग्रुपिंग्स हैं वो आपस में जितना मर्जी अरेंजमेंट कर दो, वो सब हमने एक्स्ट्रा काउंट कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये पहले 30 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं, तो वो सारे 30 फैक्टोरियल वेज को हमने उतने ही टाइम से ज़्यादा कैलकुलेट करा है। एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे इस वाले में 1 पहले था और 30 लास्ट में था। सपोज एक दूसरा अरेंजमेंट लेते जिसमें ये 30 पहले होता और 1 लास्ट में होता। तो जो हम 30 का ग्रुपिंग्स कर रहे हैं, दोनों में ही 1 और 30 एक ग्रुप में है। जब हम 100 फैक्टोरियल काउंट कर रहे हैं, हमने इन दोनों को अलग-अलग माना है। ऐसे 30 फैक्टोरियल वेज को हमने एक्स्ट्रा काउंट कर लिया है इस 100 फैक्टोरियल। तो ओरिजिनल नंबर लाने के लिए हम 100 फैक्टोरियल को 30 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो हमने एक्स्ट्रा काउंट कर लिया है उसको हम एडजस्ट करेंगे। सिमिलरली इधर के जो 70 नंबर्स हैं उसको हमने 70 फैक्टोरियल टाइम्स से एक्स्ट्रा काउंट कर लिया है। 31 पहले हो या 100 पहले हो, दोनों सेम चीजें हैं क्योंकि दोनों आफ्टर ऑल सेम ग्रुप में हैं। और ऐसे 70 फैक्टोरियल वेज होंगे जिससे हमने एडिशनली काउंट किया है, तो 70 फैक्टोरियल से भी डिवाइड करना होगा। तो फाइनल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होंगे 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 30 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 70 फैक्टोरियल। सिमिलरली जो m प्लस n को हमें m और n में डिवाइड करना था, तो नंबर ऑफ वेज होंगे m प्लस n फैक्टोरियल, और फिर m फैक्टोरियल हमने इसमें एक्स्ट्रा काउंट किया है और n फैक्टोरियल इस वाले ग्रुप में एक्स्ट्रा काउंट किया है, तो टोटल नंबर विल बी m प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। So the number of ways in which m plus n different things can be divided into two groups, one having m items and the other having n items, is m plus n factorial upon m factorial n factorial. इसमें भी एक एक्सेप्शन होता है। अगर m और n सेम है, मान लो 100 को हमने 50-50 में डिवाइड करा है, तो अब इधर वाले 50 में है या उधर वाले 50 में है, बात तो सेम है। तो हमने उसमें एक और डबल टाइम ऐड किया है। मान लो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ 50 पहले सेट में आ गया और एक दूसरे अरेंजमेंट में वही सेम सेट ऑफ 50 दूसरे वाले 50 में आया। ग्रुपिंग्स तो सेम ही है, जो पहले 50 में था या लास्ट के 50 में था, ग्रुपिंग्स में तो सेम ही में आएगा। तो उसमें हमने एक और डबल ऐड करा है, तो उस केस में हम 2 फैक्टोरियल से भी डिवाइड करते हैं। या हम कहेंगे अगर m और n सेम है, इफ m इज इक्वल टू n, देन हमारा फॉर्मूला होना चाहिए 2m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल टाइम्स m फैक्टोरियल, राइट। बट क्योंकि वो दोनों सेम थे तो हमने एक और डबल काउंट किया है, तो इसको 2 से भी डिवाइड करेंगे। बट ये वाला एग्जांपल नहीं भी समझ आया तो चिंता करने वाली बात नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे एक्सेप्शंस आते रहेंगे, हर एक चीज को हम पढ़ते नहीं बैठेंगे। जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल था, जो हर जगह पूछा जाता है, वो ये वाला है।
तो इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो हमारे पास 22 प्लेयर्स की क्रिकेट टीम है और हमें इस क्रिकेट टीम को दो टीम्स में डिवाइड करना है। एक टीम में होंगे 10 प्लेयर्स और दूसरी टीम में होंगे 12 प्लेयर्स। सो ऐसे कितने वेज हैं 22 में से 10 और 12 की टीम बनाने के? ट्वेंटी टू फैक्टोरियल बाई 10 फैक्टोरियल टाइम्स 12 फैक्टोरियल, इतने नंबर ऑफ वेज हैं 10 और 12 की टीम बनाने के। अब अगर सेम क्वेश्चन होता, हमारे पास 22 प्लेयर्स हैं और हमें 11 और 11 की टीम बनानी है, तो क्योंकि अगर सेम टीम टीम ए है और टीम बी है और एक दूसरे अरेंजमेंट में वही सेम टीम बी है और दूसरी टीम ए है, उससे फर्क नहीं पड़ता, आफ्टर ऑल वही सेम 11 एक टीम में। तो इसमें आंसर हो जाएगा 22 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल टाइम्स 2। Okay, so the next part is the number of permutations of n things. Yes. अब मान लो हमारे पास m चीजें एक टाइप की हैं, लेट्स कॉल देम टाइप 1। n चीजें दूसरी टाइप की हैं, लेट्स कॉल देम टाइप 2। एंड r चीजें टाइप 3 की हैं। और एक बार इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स से हमारे पास टोटल n आइटम्स हैं, जिनमें से m एक टाइप की हैं, m आर ऑफ टाइप 1, और m की जगह p ले लेते हैं, p आर ऑफ टाइप 1, q आर ऑफ टाइप 2 एंड r आइटम्स आर ऑफ टाइप 3। और बाकी सारी अलग अलग टाइप्स की हैं। तो टोटल n थी, टोटल n आइटम्स थी, उसमें से p आइटम्स टाइप 1 की हैं, q आइटम्स टाइप 2 की हैं, r आइटम्स टाइप 3 की हैं, और बची हुई n माइनस p प्लस q प्लस r आइटम्स अलग अलग टाइप की है। ठीक है, तो अब हमें बताना है द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम एंड द रिमेनिंग। ओके, इसकी नंबर ऑफ परमुटेशंस बतानी है। n आइटम्स में से हमें ये अरेंज करना है जिसमें टाइप, ओके, एक इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो हमारे पास 1000 फ्रूट्स हैं, जिसमें से 50 हमारे पास एप्पल्स हैं। तो ये एप्पल्स हो गए हमारे टाइप 1 के। 40 हमारे पास ऑरेंजेस हैं, 100 हमारे पास बनानाज हैं, और बाकी जितने भी फ्रूट्स बचे हैं वो सब अलग अलग हैं। सो बाकी 810 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फ्रूट्स हैं। अब हमें इनको अरेंज करना है 1000 फ्रूट्स को, एंड वी हैव टू टेल हाउ मेनी वेज आर देयर टू अरेंज दिस 1000 फ्रूट्स। तो पहले तो हम अज्यूम करेंगे कि 1000 फ्रूट्स सारे अलग अलग हैं, तो उसको अरेंज करने के हमारे पास 1000 फैक्टोरियल तरीके हो गए। अब जो हमने अरेंजमेंट लिया है उसमें से 50 एप्पल्स को हम एक्सचेंज भी कर देंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो इसका मतलब हमने 50 फैक्टोरियल टाइम्स एक्स्ट्रा काउंट किया है, क्योंकि एक एप्पल की जगह दूसरा एप्पल अगर बदल भी देंगे तो परमुटेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम 50 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, 40 फैक्टोरियल से भी डिवाइड करेंगे और 100 फैक्टोरियल से भी डिवाइड करेंगे। So the number of permutations of arranging n items of which p items are of first type, q items are of second type, r items are of third type, and the remaining items are of different types is n factorial divided by p factorial times q factorial times r factorial. ठीक, ये समझ आ गया? इसका एक और एग्जांपल करते हैं।
मान लो देर आर 1000 students, there are 10,000 students who have to appear for some exam. 100 are appearing for physics exam, 300 are appearing for chemistry exam, 200 are appearing for biology exam, और बाकी सब जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब अलग अलग सब्जेक्ट्स के एग्जाम दे रहे हैं. तो different ways of arranging these students in a classroom where the exams are taking place is, पहले तो हम 10,000 को रैंडमली अरेंज कर देंगे, तो 10,000 फैक्टोरियल आ जाएगा नंबर ऑफ वेज. अब जो 100 फिजिक्स के हैं उनको आपस में एक्सचेंज भी करेंगे तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बदलेंगे नहीं, सेम ही रहेंगे. तो इसका मतलब हम 100 फैक्टोरियल टाइम्स 300 फैक्टोरियल टाइम्स 200 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो हमने एक्स्ट्रा काउंट करा है उसको हमें वापस एडजस्ट करना है. ओके, नेक्स्ट आता है सर्कुलर परमुटेशन. सर्कुलर परमुटेशन में क्या होता है, हमारे पास n आइटम्स हैं. अब वो लीनियर स्ट्रेट फॉर्म में रहने के जगह एक सर्कल में अरेंज्ड है. सो जो n प्लेसेस हैं जो हमारे पास थे, दे आर फॉर्मिंग अ सर्कल. सो इसमें क्या हो जाता है, अगर हम ओरिजिनल नंबर ऑफ परमुटेशंस हमारी n फैक्टोरियल थी, तो इसमें अगर हम सबको एक एक शिफ्ट भी कर देंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा. व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर हमारे पास 1 2 3, इसको थोड़ा क्लियर बनाते हैं. सपोज लीनियर में हमारे पास 1 2 3, एक सेकेंड इसको बड़ा बनाते हैं थोड़ा. लीनियर परमुटेशन में हमारे पास 1 2 3 ऐसे करते करते n स्लॉट्स थे, और इन n स्लॉट्स में डिफरेंट n ऑब्जेक्ट्स अरेंज करने के n फैक्टोरियल तरीके थे. अब सर्कुलर परमुटेशन में क्या होता है, अगर यही सेम n ऑब्जेक्ट्स हम एक सर्कल में अरेंज कर लें, तो 1 2 3 4 टिल n, और सबको एक एक प्लेस शिफ्ट भी कर देंगे टू द राइट, देन इट विल स्टिल बी द सेम परमुटेशन. सो सपोज 1 की जगह हम n वाला ले आए, 2 की जगह हम 1 वाला ले आए, 3 की जगह 2 वाला ले आए, 4 की जगह 3 वाला ले आए, एंड सो ऑन. सो ये दोनों लीनियर परमुटेशन में तो डिफरेंट माने जाते, बट सर्कुलर परमुटेशन में ये दोनों सेम रहेंगे, बिकॉज सर्कुलर परमुटेशन में सिर्फ ऑर्डर मैटर करता है, प्लेस एग्जैक्ट नहीं मैटर करता. तो अगर लीनियर में n फैक्टोरियल वेज थे, सर्कुलर में हमने हर प्लेस को n टाइम्स एक्स्ट्रा काउंट कर रखा है. तो सर्कुलर परमुटेशन में नंबर ऑफ वेज होंगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n, which is equal to n minus 1 फैक्टोरियल. डिवाइडेड बाय n इसलिए करा क्योंकि हर पोजीशन के n डिफरेंट टाइप्स थे जो कि सेम ही परमुटेशन थे. ओके, अब इसमें भी सर्कुलर परमुटेशन में कई बार लिखा होता है क्वेश्चन में कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर परमुटेशन सेम मान रहे हैं. तो उसका मतलब कि 1 2 3 क्लॉकवाइज और 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज दोनों को सेम माना है. इसका मतलब उसमें हमने एक डबल और ऐड कर रखे. So number of circular permutations with n objects is n minus 1 factorial. Number of circular permutations where clockwise anti-clockwise are same is n minus 1 factorial by 2. Okay, next आता है, हमें n objects select करने हैं different categories के. So total n objects हमें select करने हैं. टाइप 1 के हमारे पास p ऑब्जेक्ट्स हैं, टाइप 2 के हमारे पास q ऑब्जेक्ट्स हैं, और टाइप 3 के हमारे पास r ऑब्जेक्ट्स हैं. अब हमें फर्स्ट टाइप के टोटल n होने चाहिए और इन तीनों के मिला के n होने चाहिए. ऐसे कितने नंबर ऑफ वेज हैं जो हम टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 में से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स निकालें जिससे टोटल नंबर n रहे. इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. सपोज हमें 100 फ्रूट्स सेलेक्ट करने हैं.
और हमारे पास 3 बकेट्स हैं। पहली बकेट में 50 एप्पल्स पड़े, दूसरी बकेट में 70 ऑरेंजेस पड़े, और तीसरी बकेट में 100 बनानास पड़े। तो आप किसी भी बकेट से कितने भी फ्रूट्स निकाल सकते हैं, बट टोटल फ्रूट्स 100 होने चाहिए। तो आप 50 एप्पल, 50 ऑरेंज और 0 बनाना ले सकते हैं। आप 100 के 100 बनाना ले सकते हैं, या कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। तो ऐसे कितने वेज हैं 100 फ्रूट्स सेलेक्ट करने के। तो इसको कैसे हैंडल करेंगे वो समझते हैं। सो इसको हम पॉलिनोमियल्स यूज करके सॉल्व करते हैं। तो सपोज करो एप्पल्स को हम x की पावर p से डिनोट कर रहे हैं। तो या तो हम 0 एप्पल लेंगे, या तो हम 1 एप्पल लेंगे, या तो 2 एप्पल लेंगे, या 50 एप्पल लेंगे। तो अगर 0 एप्पल लेते हैं उसको हम x की पावर 0 लिखेंगे। अगर 1 एप्पल लेते हैं उसको हम x की पावर 1 लेंगे। अगर 2 एप्पल लेते हैं उसको हम x की पावर 2 लेंगे। सिमिलरली अगर 50 एप्पल लेते हैं तो x की पावर 50 लेंगे। ऐसे ही ऑरेंजेस के साथ करेंगे। अगर कोई ऑरेंज नहीं लेते तो x की पावर 0। अगर 70 ऑरेंजेस लेते हैं तो x की पावर 70। एंड सिमिलरली हम बनानास के साथ करेंगे। x की पावर 0 प्लस x की पावर 1 टिल x की पावर 100। और इन तीनों पॉलिनोमियल्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस प्रोडक्ट में व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 100, वो हमारा आंसर होगा। तो समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब हम इन पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी पॉसिबिलिटी होगी वो इस x की पावर 100 के कोएफिशिएंट में कंसिडर हो जाएगी। मान लो हमने 50 एप्पल्स प्लस 25 ऑरेंजेस प्लस 25 बनानास लिए। ठीक है, तो उस केस में x टू द पावर 50 ये वाला टर्म, इसमें x टू द पावर 25 बीच में कई टर्म होगा, और इसका भी x टू द पावर 25 टर्म मल्टीप्लाई होके इस कोएफिशिएंट में सिंगल कंट्रीब्यूशन करेगा। ऐसे ही जितने भी डिफरेंट वैरायटीज होंगे हमें तीनों चूज करने के लिए, वो सारे कॉरेस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल का टर्म मल्टीप्लाई होके x की पावर 100 वाले टर्म में एक कंट्रीब्यूशन करेगा। तो फाइनली जितने भी ऐसे पॉसिबिलिटीज होंगे सब जाके ऐड होके ये वाला x टू द पावर 100 का कोएफिशिएंट बनाएंगे। क्योंकि इसको समझो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये तीनों टाइप्स ऑफ फ्रूट्स बना के हमें 100 फ्रूट्स मिल रहे हैं। अब कौन सा फ्रूट कितना है वो हमें नहीं पता। तो x की पावर 100 वो वाली पावर देखनी चाहिए जो हमारे फाइनल टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स बन रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हमें इस प्रोडक्ट में x की पावर 100 का कोएफिशिएंट निकालना है। क्या इसको हम बैठ के मल्टीप्लाई करते रह जाएंगे। तो इसको हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। क्या ये ज्योमेट्रिक सीरीज है तीनों टर्म्स। ओके, सो हम ज्योमेट्रिक सीरीज के सम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। फर्स्ट हो जाएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 50 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। सेकेंड टर्म हो जाएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 70 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। और थर्ड हो जाएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 100 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। इसमें वी हैव टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 100। एक बार इसको देख के समझ लो हमने क्या किया है, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
तो अब हम इसे और सिंप्लीफाई कर देंगे। 1 माइनस एक्स टू द पावर 50, 1 माइनस एक्स टू द पावर 70, 1 माइनस एक्स टू द पावर 100 एंड देन 1 माइनस एक्स टू द पावर -3। इसमें हमें x टू द पावर 100 का कोएफिशिएंट ढूंढना है। पहले 3 टर्म्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एक तो +1 आएगा। पहले फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर उसको 1 माइनस एक्स टू द पावर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 50 माइनस एक्स टू द पावर 70, और x टू द पावर 120 वाला टर्म हम छोड़ भी देंगे तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 120 तो ऑलरेडी 100 से ज़्यादा है, वो 100 में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। तो ये वाला टर्म हम एक निगलेक्ट कर देते हैं, टाइम्स 1 माइनस एक्स टू द पावर -3। इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन है, तो अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आगे का भी समझ आएगा। ठीक है, तो अब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। 1 माइनस एक्स टू द पावर 50 माइनस एक्स टू द पावर 70, और जो ये x टू द पावर 100 है, इसका सिर्फ 1 के साथ कंट्रीब्यूशन काउंट करेंगे, बिकॉज बाकी सारे 100 से ज़्यादा हो रहे हैं। सो नेगेटिव x टू द पावर 100 टाइम्स 1 माइनस एक्स टू द पावर -3। अब 1 माइनस एक्स टू द पावर -3, इसको हम या तो बाइनोमियल सीरीज एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं, या इसका एक फॉर्मूला होता है वो यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला अभी हम देखते हैं। तो जब 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1 टाइम्स 1 माइनस एक्स टू द पावर -3। तो यानी कि हमें इसमें 1 माइनस एक्स टू द पावर -3 में x टू द पावर 100 का कोएफिशिएंट देखना है। नेक्स्ट वाला टर्म आएगा नेगेटिव x टू द पावर 50 टाइम्स 1 माइनस एक्स टू द पावर -3, यानी कि इसमें हमें x टू द पावर 50 का कोएफिशिएंट सब्ट्रैक्ट करना है, फिर x टू द पावर 30 का कोएफिशिएंट सब्ट्रैक्ट करना है, और फिर 1 सब्ट्रैक्ट करना है। वो हमारा नंबर ऑफ वेज आ जाएगा। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, 1 माइनस एक्स टू द पावर नेगेटिव n में x टू द पावर r का कोएफिशिएंट होता है 1 माइनस एक्स टू द पावर -n की जब हम एक्सपेंशन करेंगे तो उसमें x टू द पावर r का एक कोएफिशिएंट का फॉर्मूला होता है, विच इज गिवन बाय n प्लस r माइनस 1 cn। ये समझ आ गया? 1 माइनस एक्स टू द पावर -n में x टू द पावर r का कोएफिशिएंट इज गिवन बाय n प्लस r माइनस 1 cn। तो अगर 1 माइनस एक्स टू द पावर -3 में x टू द पावर 100 का कोएफिशिएंट निकालना है तो क्या होगा? इसमें बस सब्स्टिट्यूशन करके फाइनल आंसर निकालना। ओके, सो लेट अस सी। इस केस में हमारा n 3 है और r 100 है, तो इसका कोएफिशिएंट होगा 3 प्लस 100 माइनस 1 c3, which is 102 c3। सो फर्स्ट टर्म का कंट्रीब्यूशन आएगा 102 c3। तो जब हम इसको पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमने इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ तक लिख दिया था। अब जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है, तो अगर फर्स्ट टर्म 1 है और हमें टोटल में x टू द पावर 100 का कोएफिशिएंट देखना है, मतलब हमें पूरे इसमें सिर्फ x टू द पावर 100 का ही कोएफिशिएंट ढूंढना है। सेकेंड टर्म x टू द पावर 50 है और टोटल हमें x टू द पावर 100 लाना है, तो मतलब ये बचे हुए फैक्टर से x टू द पावर 50 का कोएफिशिएंट और ढूंढना है और सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसे ही x टू द पावर 70 है तो x टू द पावर 30 हमें इधर से लाना पड़ेगा।
तो हमने फर्स्ट वाला ढूंढ लिया है, फर्स्ट वाला आया था 102c3। सेकेंड टर्म आएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर -3 में एक्स टू द पावर 50 का कोएफिशिएंट, तो वो होगा 52c3। ठीक है, तो नेगेटिव 52c3। सिमिलरली एक्स टू द पावर 30 का कोएफिशिएंट आएगा नेगेटिव 32c3, और एक्स टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट आएगा माइनस, अगर एक्स टू द पावर 0 निकालना है तो इसका मतलब r विल बी 0, इट विल जस्ट बी 1। तो ये हमारे फाइनल नंबर ऑफ वेज होंगे। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है, एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं हमने क्या किया है। तो हमारे पास 100 फ्रूट्स थे और डिफरेंट वेराइटीज के थे, बट हमें टोटल 100 फ्रूट सेलेक्ट करने हैं, किसी भी वेराइटी से कितने भी फ्रूट सेलेक्ट करके। तो हम इस वेराइटी को एक पॉलिनोमियल से रिप्रेजेंट करते हैं और फिर उस पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट ले लेते हैं हर एक डिफरेंट टाइप के लिए, और उस फाइनल प्रोडक्ट में वी वांट द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 100, बिकॉज उतने फाइनल नंबर आने चाहिए। अब इस पॉलिनोमियल को हम ज्योमेट्रिक सीरीज से सिंप्लीफाई करते हैं, और जितने भी x टू द पावर 100 से बड़े टर्म्स हैं उनको हम हटा देते हैं, बिकॉज वो वैसे भी जीरो कंट्रीब्यूशन देंगे। तो लास्ट में बस ये प्रॉब्लम आती है, डिनोमिनेटर में 3 1 माइनस एक्स है। सो इससे 1 माइनस एक्स टू द पावर -3 का फैक्टर आ जाता है। बाकी जो फैक्टर्स हैं उसमें सिर्फ x टू द पावर 100 से छोटे वाले टर्म्स हम कलेक्ट करते हैं और बाकी सब डिलीट कर देते हैं, और फिर जितना जितना x टू द पावर 100 से कम होता है उतने का फैक्टर हम 1 माइनस एक्स टू द पावर -3 से निकाल लेते हैं। सो कैलकुलेशन यू कैन डू, दिस विल बी द फाइनल आंसर। एक सिंपल सा एक और प्रैक्टिस करते हैं, सिंपल सा। मान लो इंडिया में नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया है। हमें पूरे इंडिया से 100 टैलेंटेड स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। तो हम पहले इंडिविजुअल जोन में एक टेस्ट करवाएंगे। तो उस टेस्ट से नॉर्थ में हमें 30 स्टूडेंट्स मिले, ईस्ट में 50 स्टूडेंट्स मिले, वेस्ट में 40 मिले और साउथ में 20 मिले। okay? तो what are the different number of ways in which we can identify 100 talented students from the shortlisted group of students? तो इसके लिए हम 30 को पहले पॉलिनोमियल से रिप्रेजेंट करेंगे। सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर टिल x टू द पावर 30। ईस्ट में हम सेम चीज करेंगे x टू द पावर 50 तक। वेस्ट जोन के लिए वी विल डू द सेम थिंग टिल x टू द पावर 40, एंड साउथ में वी विल डू द सेम थिंग फॉर 20 स्टूडेंट्स। अब इस पूरे प्रोडक्ट में x टू द पावर 100 का जो भी कोएफिशिएंट होगा दैट विल गिव यू द टोटल नंबर ऑफ वेज। ओके, सो इसका जब प्रोडक्ट लेंगे इसमें बड़े सारे टर्म्स आएंगे, कोई x टू द पावर 200 का, कोई x टू द पावर 500 का, कोई x टू द पावर 20 का, बट हमें सिर्फ एक ही टर्म से कंसर्न है क्योंकि वो हमारा आंसर होगा। तो पहले इसको जीपी से शॉर्ट करेंगे और फिर 1 माइनस एक्स टू द पावर, एक बार कर ही लेते हैं इसको कैसे करेंगे। इस प्रोडक्ट से हमें x टू द पावर 100 का टर्म आइडेंटिफाई करना है। तो पहला जीपी का सम आएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 30 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। दूसरा जीपी आएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 50 डिवाइडेड बाय
ओके, जीपी के सम में ये जो पावर होती थी ये नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं या लास्ट की पावर होती है? नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं ना, तो यहाँ 31 और 51 आना चाहिए, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 31 है, नॉट 30। पुराने में भी वो गलती कर रही है तो उसको चेंज कर देना। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स टू द पावर 31 टाइम्स 1 माइनस एक्स टू द पावर 51 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स टाइम्स 1 माइनस एक्स टू द पावर 41 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स टू द पावर 21 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। इस प्रोडक्ट में हमें x टू द पावर 100 का कोएफिशिएंट चाहिए। तो नीचे वाले डिनोमिनेटर को हम हटा के ऊपर ले आएंगे। 1 माइनस एक्स टू द पावर 31, 1 माइनस एक्स टू द पावर 51, 1 माइनस एक्स टू द पावर 41, 1 माइनस एक्स टू द पावर 21 टाइम्स 1 माइनस एक्स टू द पावर -4, इसमें x टू द पावर 100 का कोएफिशिएंट। अब जितने भी इस प्रोडक्ट में 100 से ऊपर वाले पावर्स होंगे उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, और जो 100 से नीचे वाले पावर्स होंगे सिर्फ उनका प्रोडक्ट लेंगे। तो इसको दो दो का प्रोडक्ट लेके करते हैं। 1 माइनस एक्स टू द पावर 31 माइनस एक्स टू द पावर 51 माइनस एक्स टू द पावर 82। दूसरा टर्म आएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 41 माइनस एक्स टू द पावर 21 माइनस एक्स टू द पावर 62। और फिर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 1 माइनस एक्स, पहले 1 को सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 माइनस एक्स टू द पावर 41 माइनस एक्स टू द पावर 21 माइनस एक्स 62। अब 31 को सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस एक्स टू द पावर 31 माइनस एक्स टू द, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स टू द पावर 72 प्लस एक्स टू द पावर 52 प्लस एक्स टू द पावर 93। ओके, और अब फिर x टू द पावर 51 को करेंगे, माइनस एक्स टू द पावर 51 प्लस एक्स टू द पावर 92 प्लस एक्स टू द पावर 72। अब ये 51 और 62 वाला टर्म हम कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज इसमें पावर 100 से ऊपर जा रही है। अब x टू द पावर 82 में सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज बाकी सब टर्म्स में पावर 100 से ऊपर जा रही है। तो हमारे पास इतने सारे टर्म्स आ गए, 1 माइनस एक्स टू द पावर -4। तो अब फर्स्ट वाले के लिए 1 के लिए हम इसमें x टू द पावर 100 का कोएफिशिएंट ढूंढेंगे, इसमें x टू द पावर 59 का, x टू द पावर 79 का, 38 का एंड सो ऑन, और प्लस और माइनस कर देंगे अकॉर्डिंगली, दैट विल गिव द फाइनल आंसर। तो ये तो हमने 4 बास्केट्स ले लिए थे इसलिए कॉम्प्लेक्स आ गया है। जनरली 2 या 3 बास्केट्स वाला क्वेश्चन ही आएगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम आती है नंबर ऑफ फैक्टर्स। अगर कोई नंबर है हमारे पास, मान लो 1062, हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर फॉर दिस नंबर? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अभी इसको 1062 को फैक्टराइज कर देते हैं। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 से डिवाइड करेंगे तो 531 आएगा। 531 डिविजिबल है क्या किसी से? हम थोड़ा आसान नंबर ले लेते हैं जिससे जल्दी समझ आ जाए। लेट्स टेक 48। हाउ मेनी फैक्टर्स डज 48 हैव? So what will be the prime factorization of 48? 2 to the power 4 times 3। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, ये 4 है तो 4 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई ये 1 है तो 1 प्लस 2, 1, यानी कि 5 टाइम्स 2 यानी कि 48 के 10 फैक्टर्स होंगे। तो जितनी भी पावर आ रही है प्राइम फैक्टर्स की उसको प्लस 1 करते करते प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक, अब हम देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। वैसे क्यों हो रहा है ये आपसे नहीं पूछेंगे, आपको बस नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछेंगे।
तो एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद हम क्यों हो रहे हैं वो डिस्कस करते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं 132। हाउ मेनी फैक्टर्स विल बी देयर फॉर 132? तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 to the power 2, 3 to the power 1, 11 to the power 1. Therefore, number of factors will be 2 plus 1 times 1 plus 1 times 1 plus 1, which is 12. ओके, अब हम समझते हैं क्यों हो रहा है। ओके, ओके, तो जितने भी फैक्टर्स होंगे उनमें 2 या तो 0 टाइम्स आएगा 2 की पावर, या 1 टाइम आएगा, या 2 टाइम आएगा। 3 या तो 0 टाइम आएगा या 1 टाइम आएगा, और 11 या तो 0 टाइम आएगा या 1 टाइम आएगा। तो 2 की पावर सेलेक्ट करने के हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, 3 की पावर सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, और 1 की पावर सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। तो टोटल पॉसिबिलिटीज विल बी 3 इंटू 2 इंटू 2, विच इज 12। इसलिए नंबर ऑफ फैक्टर्स विल बी 12। तो अगर हमारे पास n इज इक्वल टू a टू द पावर p, b टू द पावर q, c टू द पावर r है, where a, b, c are prime numbers, then the number of factors will be p plus 1 times q plus 1 times r plus 1. ठीक है, ये समझ आ गया? ओके, द लास्ट टॉपिक फॉर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज डिरेंजमेंट। ये एडवांस का टॉपिक है, मेंस में नहीं आता, पर इसको यहीं पे समझ लेते हैं। ओके, सो सपोज हमारे पास n एनवेलप्स हैं और सबके अंदर एक ना एक लेटर है। लेट्स से दिस इज एनवेलप नंबर 1, this is envelope number 2, and so on. There are n envelopes. अब किसी ने सारे लेटर्स निकाल लिए उसके एनवेलप से और किसी और एनवेलप में डाल दिए। तो जो ओरिजिनली 1 में लेटर था उसको निकाल के 2 में डाल दिया, 2 में था उसको किसी और में डाल दिया, n वाले को किसी और में डाल दिया। सो डिरेंजमेंट्स मीन हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर कि किसी का लेटर वापस सेम लेटर में ना जाए। यानी कि हमें इसको लेटर को निकाल के दूसरे में डालना है, और ऐसे कितने तरीके हैं कि जो लेटर पहले जैसे एनवेलप में था उसमें वापस ना जाए। तो इसका फॉर्मूला होता है द नंबर ऑफ वेज आर n फैक्टोरियल टाइम्स 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस -1 to the power n 1/n फैक्टोरियल। सीधा सीधा आपसे एनवेलप्स और एक्सचेंज वाला क्वेश्चन पूछेगा डिरेंजमेंट का, आपको सीधा फॉर्मूला लगा के आंसर लिखना है। इसको बोलते हैं डिरेंजमेंट्स। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा है स्टार्टिंग से? पहले तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन देखी थी और कुछ प्रॉपर्टीज देखे थे, और जो फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम, फिर हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग देखा था। एक इवेंट के m टाइप्स हैं, दूसरे इवेंट के n टाइप्स हैं, तो दोनों इवेंट होने के m n टाइप्स होंगे। फिर हमने देखा m प्लस n थिंग्स को m और n की ग्रुपिंग्स में डिवाइड करना है, तो फॉर्मूला होगा m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, और अगर m और n सेम है तो एक और 2 फैक्टोरियल का फैक्टर आएगा। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हमने करे थे डिफरेंट फ्रूट्स में से हमें
एक फ्रूट और दूसरा फ्रूट और तीसरा फ्रूट एक टाइप का है, बाकी सब अलग अलग टाइप के हैं, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग और अरेंजिंग विल बी n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। और फिर सर्कुलर परमुटेशन का फॉर्मूला होता है n माइनस वन फैक्टोरियल, क्लॉकवाइज काउंटर वाइज सेम है तो अपॉन टू कर देंगे। देन ये वाला हमने देखा कि 3 डिफरेंट बास्केट्स में से 100 फ्रूट सेलेक्ट करने हैं, तो उसको पॉलिनोमियल में रिप्रेजेंट करेंगे और फाइनली x टू द पावर जितने नंबर ऑफ फ्रूट्स चाहिए उसका कोएफिशिएंट निकाल लेंगे, जिसमें हमें ये थ्योरम यूज करना पड़ता है कि 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस एन में x टू द पावर r का कोएफिशिएंट इज n प्लस r माइनस वन सी एन। ओके, और लास्ट में हमने किया नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो एक्सपोनेंट्स में प्लस वन ऐड करते करते मल्टीप्लाई कर देंगे। और रीजनिंग है कि प्लस वन इसलिए करेंगे बिकॉज जीरो भी हो सकता है कि हमने कोई फैक्टर सेलेक्ट ही ना किया हो। और फिर डिरेंजमेंट्स का फॉर्मूला देखा। ओके, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ऐसे वैसे तो हजारों टाइप्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं, मतलब जो अभी हमने किया वो तो 5% भी नहीं है, बट 80-90% ऑफ द क्वेश्चंस इन्हीं सब में से आते हैं। ठीक? तो अगर कोई अजीब सा क्वेश्चन दिखे परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, देयर इज नो नीड टू वरी, कोई भी बच्चा सारे टाइप्स के परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ सकता, ठीक है, जितना पढ़ लिया दैट इज सफिशिएंट।